Just wanted to say, tahe dil se congratulations on all the good that your work has brought to you. एक होता है मेहनत करना, बट वो मेहनत करके जो आपको अच्छा फल मिल रहा है, you're getting more good work to do. Just congratulations on that, because that is such a big deal. Thank you very much, Karishma. It's all the love. It's all because of the love that I've been getting for so many years from all of you guys and the audience at large. It's all because of that and the conviction of the directors. फैंटास्टिक. अब बात करते हैं डायल 100 की. और सबसे पहली चीज दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज द फैक्ट कि साउथ एशियन कंटेंट को इतना बड़ा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म अब मिल चुका है. Z5 इज ऑफ कोर्स डूइंग such a fantastic job with the content and bringing. आप Z5 पर इससे पहले साइलेंस कर चुके हैं, and now there is Dial 100 as well. आपके हिसाब से whatever Z5 is doing, the kind of content they're putting out there, how important is this in the bigger story that's being told right now? The Z5 has been really experimenting with their content and really going ahead and backing up the content, which is not only for the elite masses, but also for the larger audience, uh, in particular. Uh, Silence, the last film that was showcased at the platform, it has done extremely well, and people got entertained, and they have given such massive responses. So I'm and with the Dial 100, after watching the film in with the conviction that the marketing team and the platform have gone ahead and put in all their might behind this product, is something which is very complimentary for me as an actor. They have given me so much of respect. They're they kind of listening to me all the time, my opinion, my observations. They were taking my suggestions. So these are the things which which actually tell you that this is a platform which is actually has a big heart to respond to everything that you are saying, and because they are interested in growing and evolving as a platform. This is and they have become today slowly and gradually they have become a global platform, and it's just the beginning. That's fantastic. And कहते हैं ना, well begun is half done. So it's a good beginning, like you said. अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी about Dial 100. ये particular film जो कि दिखाती है सारे events, from what I understand from the trailer, from the plot. इसकी पूरी picture बहुत high paced है और सब कुछ एक दिन के अंदर हो रहा है. Is that correct? एक रात में हो रहा है. एक रात में हो So रहा है. and so it's edge of seat kind of intriguing thriller, but there's more to it. There's much more to Dial 100 being just a thriller than Dial 100 being just edge of a seat thriller. It's it's so emotional. It is really going to shock you in the end. It will take so much emotion out of you. I don't want to talk too much about it. So that is why I call it an emotional thriller. Thriller is one thing, but there is so much more emotion attached with it. It's a topical film at the same time. It is also talking about children of 16 years, 18 years, 17 years, what kind of danger that they are, the dangerous world that they're also growing in. So they are so vulnerable to so many things outside, and how parents are struggling in protecting them from all that evil outside. So it's also talking about all of that. So all in all, I will want your viewers to just go ahead and watch it with their family, especially with those children, for them to be aware of all the problem outside. Right. अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ. आपने 2001 में अक्स की थी. अक्स के जो 3 राइटर्स थे उसमें से एक रेंजल डिसिल्वा, और अब वो इस पूरी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. तो आपकी इक्वेशन उस वक्त में उनके साथ कैसी थी, और अब 20 साल में हैव यू उस बीन? दौरान में जी, उस दौरान हम ज्यादा मिले नहीं थे करिश्मा, बट रेंजल से कभी कभी मुलाकात होती थी. एक बार फ्लाइट में भी मिले थे. But he's a mild mannered, soft spoken person. He's such a cow.
He can easily be a teddy bear for anyone, you know. So he hardly raises his voice. He's an ad film director. Uh, Apart from what he writes for films and directs for films. Um, so yeah, I mean, you know, the script itself was a testimony to what, you know, he's capable of as a director, and what kind of a you know, thought process he had. We had a long meetings, and we also went for uh, many script readings together. जी. Um, it was so amazing to work with this man, with, you know, with so with all this smile all the time. I this My association with him is actually, I think it's for life now. और डायल 100 में नीना गुप्ता के साथ आई थिंक ये पहली बार है जो हम आपको एकदम भिड़ते हुए ऐसे देखेंगे, जैसे ट्रेलर में ऐसे लगा है कि आपने कुछ तो किया है उनके कैरेक्टर को अपसेट करने के लिए। बट नीना जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं नीना जी के गुप्ता जी के साथ सिर्फ एक सीन है मेरा इस फिल्म में, क्योंकि हम लगातार अपने फोन पे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो एक रात की कहानी है, तो सिर्फ एक बार मिलते हैं हम लोग। साक्षी जो कि मेरी वाइफ प्ले कर रही हैं, उनके साथ 2 सीन है सिर्फ। सो हम लोग सिर्फ फोन पे बात करते हैं। जी। मेरा बेटा जो लड़का बना है, उसके साथ भी एक सीन है, जबकि फोन पे मैं बहुत ज्यादा उससे बात कर रहा हूँ। सो नीना गुप्ता जी स्टॉलवर्ट है। आई मीन, हमारे थिएटर में सीनियर रही हैं, उनके सिनेमा, उनके टीवी के काम हमने देखे हैं, सराहा है, उनसे सीखा है। जिस तरह से उन्होंने अपने टर्म्स पे एक इंडिपेंडेंट तरीके से, इंडिपेंडेंट माइंड से उन्होंने जिंदगी को जिया है, उसको देखा है हमने, इंस्पायर हुए हैं। सो मी एंड माय फैमिली आर, यू नो, quite a big fan of her. So it was a privilege to be sharing the screen space with Neena ji. Sakshi I've known from her college days, and you know, when I directed a play for a dramatic society, she played the lead in that play. Yes, So madam. and she's such a superlative actor to work with. She has the ability to really surprise you with such, you know, unique responses that you can hardly think of. She can actually shock you with the ability that she has at times. And what a performer and what a woman Sakshi has become now. I'm so proud of her. फैंटास्टिक। उन्होंने भी आपको याद रखा है, एंड शी सेड कि वो मेरे पहले डायरेक्टर एक तरीके से हैं मनोज बाजपेयी सर। सो दैट इज समथिंग रियली स्पेशल। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो हमारे लिसनर्स आपसे पूछना चाहते हैं, तो मैं उनकी तरफ से पूछ रही हूँ। देयर इज वन क्वेश्चन दैट सेज कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपकी जो गुंडाई देखी, ओके, वो देख कर ऐसा लगता नहीं है कि आपने अपने फिल्मी दुनिया से पहले की जिंदगी में किसी को पेला नहीं है। ऐसा लगता है कि आप 2-4 को तो पेल के आए ही होंगे। सो दे वांट टू नो, सच सच बताइए, फिल्मी इंडस्ट्री से पहले कोई आपसे कभी पिटा था क्या? मैं 16 17 साल की उम्र में बहुतों को दिया है। दिल्ली में भी। देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। यहाँ पे हर तरीके बड़ी एक्साइटिंग कंट्री है, बहुत ही ड्रामेटिक कंट्री है। अपनी रक्षा, अपना प्रोटेक्शन अपने हाथ में होता है। तो हम ऐसे लोग हैं जो कि हम खुद कभी प्रॉब्लम नहीं देते हैं, लेकिन हमसे जो पंगे कोई लेता है, तो फिर हम लोग भी उस समय में, अभी तो हम लोग बहुत शांत हैं, तो भूल ही चुके हैं उस सेल्फ को। बहुत साल की पहले की बात है, जब हम स्कूल में, कॉलेज और इंटर कॉलेज में हुआ करते थे। लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो है कभी कभी जो है ऑफेंसिव पे जाना पड़ता था। तो हम भी जाते थे ऑफेंसिव पे, बट दैट्स इट वाज नथिंग लाइक सरदार खान, इट वाज नथिंग लाइक बिकू मात्रे, इट वाज नथिंग लाइक दैट। गुड टू नो। हम तो यही कहते हैं कि नहीं मेथड एक्टर है। हमें नहीं लगता है, इन्होंने एक बहुत शरीफ आदमी है, बस मेथड एक्टर है ये। अच्छा, एक चीज आपसे पूछनी थी मनोज, कि आपने जैसे कि वो गाना जो भोजपुरी रैप रिलीज किया, ऑलरेडी 9.2 मिलियन उसको व्यूज मिल चुके हैं यूट्यूब पर। तो ये आपको गानों में पर्सनली इंटरेस्ट रहा है शुरू से, या आपने किसी के कहने पर ये किया था? नहीं, वो अनुभव सिन्हा मेरा जानने वाला है, और अनुभव सिन्हा की तरफ से ये पोएट्री उसने शेयर किया था। देन उसने कहा कि क्या तुम इसको
अपनी आवाज में करोगे। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन लॉकडाउन अभी खुला भी नहीं था पूरे तरीके से, अभी पार्शियल भी अभी अभी शुरू ही हुआ था, तभी जाकर के हमने उसको एक बंद कमरे में कर दिया था। We just kind of we wanted to have fun, and also we wanted to talk about the migrant laborers whose plight we've seen on TV or on phones, and we all felt helpless looking at them. So it was a tribute to all those migrant people, all the migrant laborers. It was really really well received. आप वैसे गानों के शौकीन हैं मनोज? Do you have any favorites? बहुत ज्यादा। तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा पे मैं, लेकिन मैं गा नहीं पाता हूँ, ये अलग बात है। मैं सुनता बहुत अच्छा हूँ, लेकिन गानों का शौकीन हूँ, और गा के नुआंसेस, उनके जो सुर के नुआंसेस, गायकी के नुआंसेस को समझने की कोशिश सालों से चलती रही है। शायद अगले जन्म में कहीं जाके भगवान मुझे बना पाए एक अच्छा सिंगर। आपके फेवरेट सिंगर्स में कौन शामिल हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरे तो हर तरीके के, आप किसी भी जॉनर में, मैं कभी भी एक जॉनर में कभी नहीं जाता हूँ। मैं एक किशोर कुमार, मोहम्मद रफी साहब तो जरूर मेरे फेवरेट रहे हैं, बट मन्ना डे साहब भी रहे हैं, और मेरे फेवरेट सोनू निगम भी हैं, मोहित चौहान भी हैं। मोहित चौहान की मैं बहुत गाने सुनता रहता हूँ उनके। Wow. ओ मसक्कली मसक्कली ओ ददे 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 तदी ओ ददे तदी, आई तो वो बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बड़ी कमाल कमाल का सुर, कमाल की गायकी और कमाल के इमोशन उन्होंने उसमें दिए। और उसके अलावा मैं कुमार गंधर्व जी, किशोरी अमोनकर जी, भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, इन सब लोगों का बहुत बड़ा मुरीद रहा हूँ मैं, और उनके भी गाने सुनता रहता हूँ। अंग्रेजी में भी बहुत सारे लोग हैं, अ, उनको भी पता नहीं क्यों मुझे सब लोग, कितने सारे लोग मुझे पसंद है। नए में भी बहुत सारे लोग कभी कभी सुनता हूँ, लेकिन मुझे मेरे दिमाग से मैं एल्विस प्रेस्ली को कभी हटा ही नहीं पाता हूँ। आई जस्ट डोंट नो व्हाई। Wow. अमेजिंग या। That is amazing. That we did not know this about Manoj Bajpayee. आज कुछ नया पता राइट। चला हमें आपके बारे में। City 1016